Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to start with the first chapter of ninth, which is the French Revolution. Now, I know this chapter is very tricky. I know a lot of you face a lot of problem in French Revolution. So, my job is to make your life easier in such a manner that you remember everything, and at the same time, you know what is happening in the textbook. So I have brought textbook also along with me and also the main pointers along with me. So what I want you guys to do is while I teach these top points, I want you to note down all of these points so that you have one your notes ready for revision. है ना? मुझे ये नहीं बताना मुझे इतना टाइम क्यों लगा, व्हाई एम आई अपलोडिंग वीडियोस आफ्टर 8 मंथ्स. जो हो गया वो हो गया, लेट इट बी. Now let us start with the first chapter of French Revolution. So I could have started with geography, but geography का मुझे पता है कि geography कर लेंगे, है ना? As compared to 10th का geography, 9th geography is very hard. So of course I am going to start with geography also, but I wanted to finish it off with history first, and then civics, then geography, and then economics. Okay. So let us just get started with the French Revolution. ठीक है, I will study this, I will read this. The lecture is going to be long. मेरे को कोई शॉर्टकट नहीं प्रोवाइड करना है. अगर आप ये देखते हो तो आई गारंटी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. फॉर दैट मैटर क्लासेस ऑल्सो. ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि जो नहीं अफोर्ड कर पाता ट्यूशन या क्लासेस, वो बस मेरी वीडियोस भी देख ले अगर, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी हिस्ट्री. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू करते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है. On the morning of 14th of July 1789, the city of Paris was in state of alarm. State of alarm का मतलब होता है कि लोग अलर्ट थे किसी चीज को लेके. अब क्या अलर्ट, क्यों अलर्ट थे, देखते हैं. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire on citizens. So जैसे ही आप ओपन फायर सुनो, ऑफ कोर्स हर कोई अलार्म हो ही जाने वाला है ना? अलार्म तो होंगे कि भाई किस पे ओपन फायर करने वाले हैं, क्यों ओपन फायर करने वाले. So after that, some 7,000 men and women gathered in the front of town hall. वहां पे टाउन हॉल के सामने दे गैदर्ड. ठीक है. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया. बिकॉज अगर आपको पता चल गया कि अगर आप पे ओपन फायर होने वाला है, ओपन फायर किस पे होने वाला है? ओपन फायर ऑन जनरल पब्लिक. तो जो पहला रिएक्शन वुड बी टू help oneself. No, so how will you help? How common people will help? By forming people's militia. तो इसको काउंटर कैसे करने वाले थे? By forming people's militia. They broke into the number of government buildings in search of arms. Because आप हाथ से कितना मारा मारी करोगे जब सामने वाले के पास proper arms and ammunition है. So finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. अगर ये सिटी है तो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, ये अगर सिटी है तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. एंड स्टॉर्म्ड इनटू द फोर्ट्रेस प्रिजन. फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब जो फोर्ट है उसका जो प्रिजन है उसमें ये लोग चले गए. एंड द बेस्टिल वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. एम्यूनिशन होर्डेड का मतलब है एक साथ एक जगह पे इकट्ठा रखना. क्योंकि वो प्रिजन था तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा थे एमिनेशन के. इन द आर्म फाइट that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released through, though were only 7 of them. तो जब ये लोगों ने एंटर किया है बेस्टाइल प्रिजन में तो इन्होंने एक जो भी गार्ड है या कमांडर है उसको मार दिया आर्म्ड फाइट में. ओके. एंड yet Bastille was hated by all because it stood for the despotic power. despotism का मतलब होता है कि हद से ज्यादा पावर के ऊपर घमंड करना, उसको ओवर यूज करना अपने लोगों को दबाने के लिए. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets to all those who wished to keep the souvenir. Souvenir का मतलब है यादगिरी, यादगिरी रखना.
of its destruction. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि one fine day people found out that open fire होने वाला है और open fire के वजह से 7,000 लोग जो है उन्होंने डिसाइड किया अब हम क्या करेंगे, आत्म सुरक्षा, खुद से ही अपनी सुरक्षा करेंगे। तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, पीपल्स मिलिशिया फॉर्म किया। बट पीपल्स मिलिशिया से सिर्फ काम बनने वाला है क्या, नहीं बनने वाला। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, आर्म्स की जरूरत पड़ेगी। इनको पता चला आर्म्स कहाँ पे मिल सकता है, तो प्रिजन में मिल सकता है। तो प्रिजन में गए, प्रिजन कौन सा, बैस्टिल। वहां पे इन्होंने आर्म्स फाइट में एक कमांडर को मार दिया, खत्म कर दिया। एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको तोड़ दिया, सारे पूरे फोर्ट को तोड़ दिया। तो उसकी जो ईंटें थी इन्होंने रख ली एज ए सुवेनिर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। पेरिस इज अ सिटी और जो आसपास का गांव का इलाका है उसको कंट्री साइड बोला जाता है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो सोचो अब क्या हो गया, खाने की चीजों का दाम बढ़ चुका है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। सो व्हाट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज दिस, कि इसी पॉइंट के बाद बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। ठीक है, ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? तो ये तभी उन्हें पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीज हो जाएगी, बट बाद में उनको समझ में आया कि ये क्यों और कैसे हुआ। नाउ अगर यहां तक क्लैरिटी मिल चुकी है तो चलो भाई, क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा द एंशिएंट ओल्ड रिजीम जो है, हाँ यस, मुझे यहां तक लाना है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द रिजीम। ओके, नाउ अभी देखो, ये फर्स्ट स्टेट क्लर्जी क्लास, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। सो पहले हम यहाँ से ओवरव्यू, इस साइड से ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये सारा स्टेट था क्या। सो द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 estates, which were those, first was clergy class, which owned 10% of the land, paid no direct taxes to the state, collected tithes, tax from peasants for the church। तो तो मतलब नॉर्मल लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा था, गरीब लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, किसके लिए, चर्च के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेट कौन है, नोबिलिटी। We held high positions in army, government and courts, enjoyed feudal privileges। वो क्या है हम देखेंगे। And then paid no taxes। So they completely were, उनको अलाउड था कि वो कोई भी टैक्सेस नहीं भरेंगे तो चलेगा। फर्स्ट एस्टेट को थोड़ी बहुत टैक्सेस भरने की जरूरत थी। एंड नाउ आता है हमारा कॉमन लोग। ठीक है, थर्ड एस्टेट, अबाउट 97% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, आर्टिसन, सर्वेंट्स, bourgeois class which is middle class, जो हम लोग है एक्चुअली, पेड ऑल द टैक्सेस। तो तीथिस तो हमने देख लिया, तीथिस क्या था, टू द चर्च, टैक्स टू द चर्च। टैली का मतलब होता है, टाइल या टैली कुछ भी बोलो, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट लैंड टैक्स टू द स्टेट। तो इनको स्टेट को भी पैसा देना है, इनको चर्च को भी पैसा देना है, और फिर फ्यूडल ड्यूज भी देना है लॉर्ड्स। सो मतलब एवरीथिंग, जितना भी ये इनका चल रहा था सोसाइटी, वो बस चल रहा था हमारा थर्ड स्टेट की वजह से। और यही सेम चीज आप देखिए ना, इंडिया में भी तो ऐसा ही है। अगर मेजोरिटी कोई टैक्स पेयर है तो वो है मिडिल क्लास, क्योंकि गरीबों पे कोई टैक्स नहीं है, और एकदम जो गरीब है उनको कोई टैक्स नहीं है, और जो एकदम अमीर है वो तो एग्जेम्प्टेड है सारी चीजों से। दे नो ऑल द दिस थिंग, लूप होल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, 1774 में आ गए हैं। लुई द 16 ऑफ बर्बॉन फैमिली ऑफ द किंग डिसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वाज 20 years old। तो एक चीज क्या पता चली हमें, और क्या पता चली हमें, एक तो था लुई 16,
ठीक है, कहाँ से आता था? बर्बन फैमिली से आता था। 20 साल का था जब उसको गद्दी मिली। Married to Austrian Princess Marie Antoinette, upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of the France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court, मतलब lavish court, है ना, at the immense palace of Versailles. तो ट्रेजरी खाली, है ना, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट वाज ह्यूज। फिर उसके बाद उसके अलावा क्या है, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। मतलब फ्रांस विद यूएसए किसके अगेंस्ट था? ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो who helped American colony to gain independence? France and Louis XVI helped 13 American colonies. The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. ठीक है, lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on the loans. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of budget on interest payment. क्योंकि हमने इतने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो उस वॉर को करने के लिए हमारे ये रॉयल फैमिली ने क्या किया था? बहुत सारे लोन्स लिए थे। तो लोन का अमाउंट बहुत बढ़ गया था और ऊपर से लेंडर्स ने 10% इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court running the government offices or universities, the state was forced to increase the taxes. Yet, even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three estates, and only members of the third estate paid the taxes, as we all know. Livers क्या है? Unit of currency in France, discontinued in 1794. Clergy मतलब a group of person invested with special functions in the church. ठीक है, a tax levied by church comprising 1/10 of agricultural produce, and tille is tax to be paid directly to the state. Now, the society estates was part of feudal system that dated back to Middle Ages. The term old regime is usually used to describe society and institutions of France before 1789. तो 1789 के पहले जो regime था फ्रांस में उसको बोला जाता था old regime. ठीक है, Figure 2 shows how system of estates in France society was organized. Peasants made up of 90% of the population. However, only a small number of them owned land they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles, the church, and the richer members of the third estate. तो थर्ड स्टेट में भी रिच लोग भी आते थे और फिर उसके बाद आते थे पुअर। ओके, तो जो जमीन थी मेजोरिटी वो ये लोग ओन करते थे। The members of the first two estates, ये तो हो गया। The most important of this was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges, feudal dues, which when they extracted from the peasants were obliged to render services to lord. तो इनको peasants को taxes भी पे करने हैं और उसके बाद अपनी सेवा भी देनी है। सेवा समझो, to work in the house and the fields, to serve the army or to participate in building of roads. तो मतलब इनके साथ जो बुरा होना था वो सब कुछ बुरा हो ही रहा है। Now, the church too extracted its share from taxes called as fiefs. तो ये लोग तीनों टाइप के टैक्सेस की बात चल रही है। From the peasants, and finally all members of third estate had to pay taxes to the state. This included direct tax, which is called as style, and the number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumption. For example, income tax जो है वो हमारा इंडिया में इट इज डायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो वही उसी की बात चल रही है। वहां पे भी दो टाइप के टैक्स होते थे, एक थे डायरेक्ट और एक थे इनडायरेक्ट। टीले जो है, टाइल जो है या टीले बोलो, ये क्या है? फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by third estate only. तो आई होप इतना सा पार्ट आपको क्लियर है ना? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द
French society in 17, I guess in 17th century, in late 18th century. यहाँ तक अगर क्लियर है, ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट सो दैट आई नो कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ चुका है। अभी स्ट्रगल टू सरवाइव क्या हो गया, क्यों बेचारों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है? पहले हम एक वर्ड देखते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ठीक है, तो मतलब अगर आपको जो नॉर्मल चीजें अगर आपको नहीं मिल रही है, नॉर्मल सुख सुविधाएं अगर आपको नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल खाना, घर, एजुकेशन, ये तो बहुत बात की बात है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ सबसिस्टेंस में क्या क्या आ सकता है, वो चीजें जो आपको बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। Hello, welcome back. So, I had to pause for some time, but then where were we? We were at subsistence crisis. तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो एक बात मैं बताना भूल गई आपको, मैं ना छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लेके आऊंगी। जैसे टुडे आई विल बी कवरिंग टिल ग्रोइंग अप द मिडिल क्लास, बिकॉज देन फिर उसके बाद आउटब्रेक ऑफ रिबेलियन जो रिवोल्यूशन है वो अलग पार्ट है। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब आप पे कोई बर्डन आए, सो लेट अस गो वेरी स्लो एंड देन छोटे छोटे पार्ट्स में हम पढ़ाई करें। तो अब क्या हुआ, स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कभी कभी आर्टिफिशियली इंड्यूस होता है, जैसे इंडिया में हुआ था। इंडिया में जो फमाइन आया था वो ब्रिटिशर्स ने आर्टिफिशियली इंड्यूस किया था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रांस में जो हुआ था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इट वाज फर्स्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दैट इज 23 मिलियन इन 1715, तो ये चला गया 28 मिलियन इन 1789। सो द पीरियड इज वेरी लॉन्ग, बट देन जंप हुआ था, a rapid increase in the demand for food grains, production of grains could keep the pace with the demand. जब जब डिमांड ज्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया, है ना। तो अब मोस्ट रोज रैपिडली, so the piece of bread which was staple diet of majority rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshop, whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. So when inflation occurs, तो एक होता है नेचुरल इन्फ्लेशन, एक होता है इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। व्हेन नेचुरल इन्फ्लेशन होता है तो ये माना जाता है कि लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। बट इंड्यूस्ड क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट उसके साथ साथ जो वेजेस है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जब वेजेस इंक्रीज नहीं होंगे तो ये लोग जो इनका स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट विच इज ब्रेड, वो तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेड. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the older regime. Okay, and now उसके बाद अब क्या करेंगे, ये वाला थोड़ा सा सेक्शन खत्म करते हैं, बट इसके साथ साथ पहले लेट अस कवर कि ये थोड़ा सा सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है। पॉपुलेशन बूम हुआ फ्रॉम 23 बिलियन टू 28 मिलियन। फूड ग्रेन शॉर्टेज हो गया, हाईब्रेड प्राइसेस। हाईब्रेड ब्रेड क्या था, स्टेपल डाइट ऑफ एवरेज फ्रेंच पर्सन। फिर लीडिंग टू स्टारवेशन, एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द मोनार्की। एक तो ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग वाज नॉट ऑन द पीपल बट इन मेंटेनिंग द मोनार्की। फिर डेट क्राइसिस तो था ही कि इनको बहुत ज्यादा पैसा देना है बिकॉज ऑफ वॉर्स में पार्टिसिपेट किया उसके वजह से, है ना। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जब ये सब हुआ तो मिडिल क्लास का राइज कैसे हुआ। हाउ डिड द मिडिल क्लास डू, उनका क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने ये सिचुएशन को ओवरकम की, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। सो नाउ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इसमें मैंने कुछ बनाया है क्या, मैंने बनाया होगा, यस मैं वही सोच रही हूँ मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे नहीं बनाए होंगे। सो बनाया है मैंने शॉर्ट नोट सो दैट इट इज गुड फॉर यू टू
Revise. Now, let us start. In past, peasants were in past peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. So, issue क्या था? First, the issue was of increasing taxes. अब नया issue आ गया, that is food scarcity. मतलब उस टाइम का जो ओल्ड रिजिम था वो दो चीजें फेस कर रहा था, which were these two. Nice. Now, but they lacked the means and the programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. So the middle class was just raising their voice with respect to these two issues, but उसके लिए actually में क्या करना चाहिए? They had no clue, they had no measures. ठीक है. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. इसीलिए जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो लोग जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो कैसे हमें पता चलेगा? तो पूरा जो बाहर था, जो पूरा प्रेशर था या जिम्मेदारी थी, वो किस पे आ गई? प्रॉस्परस एंड वो लोगों पे जिनको एडुकेशन का एक्सेस था. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufacture of goods such as woolen, silk, textiles that were either exported or brought by richer members of the society. In addition to the merchants and manufacturers, third estate included professions such as lawyers or administrative officials. मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए. अब इसमें और कौन आ गया है? हमारे लॉयर आ गए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आ गए. All these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, person's social position must depend on its merit. कि आप कितने अच्छे हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि आप इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट और पोजीशन कैसी है. These ideas emphasizing a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers. Philosophers like John Locke, J. Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refuse the doctrine of divine. Doctrine of divine का मतलब होता है कि जो मोनार्क है वो डिसेंडेंट है. किसके डिसेंडेंट है? तो वो भगवान के डिसेंडेंट है. And now by the virtue that they were descendant of the one true God, they have absolute right, and whatever that they say, that was पत्थर की लकीर. ये उनके पास पावर था, absolute right. उन्होंने किसने? रूसो ने बोला, लॉक ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिवाइन थ्योरी अप्लाई नहीं होती है. आप कैसे पता करोगे कि ये सच में भगवान का वंशज है कि नहीं? रूसो ने क्या किया? उसने आइडिया फॉरवर्ड किया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. देखिए ना, आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है और जो पीपल है, उन दोनों के बीच में समझौता है ना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट, के लोगों को कैसे चलना है और गवर्नमेंट को कैसे चलना है. तो रूसो ने ये आइडिया फॉरवर्ड डाला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government. अभी वही हम पढ़ने वाले हैं, division of power, कि there has to be a separation of power between legislature, executive and judiciary. अपना काम ये लोग खुद करेंगे, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते. The model of government was to put force in USA after 13 colonies declared independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual right was important example of पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस. तो ये जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ा हमने, लॉक के बारे में पढ़ा, रूसो के बारे में पढ़ा, हमने मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा, इसका जो बेसिस है, इनको ये जो आइडियाज आए, ये कहाँ से आए? ये इनको आए अमेरिका से, राइट. फिर उसके बाद दी आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन, बिकॉज सैलॉन वाज अ वेरी गो टू प्लेस. ऐसे जगह पे डिस्कशंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है. एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर. These were frequently read aloud in groups or benefit for those who did not read and write. The new Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses to the state guaranteed anger and protested. So this was about the
subsistence crisis, rise of middle class, the various thinkers, यहां तक हमने देख लिया। अब मैं लाऊंगी पार्ट 2 आप लोगों के लिए, जिसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों पे इतना ज्यादा बर्डन आए। So I hope that you guys have understood the chapter. Okay, I hope that you have understood the chapter and that अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट एंड हम एक चैट करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। सून आई विल बी कमिंग अप विथ पार्ट 2।